نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 92 فورتھ پارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ آیت جو ہے نمبر 92 جو ہے یہ امپورٹنٹ بھی ہے ٹھیک ہے اہم آیت ہے اس کو ویسے بھی سمجھنا ضروری ہے اور بلکہ یاد ہونا بھی اچھی بات ہے بہت سارے دروس میں اس آیت کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اسکالرز اس آیت کو یوزلی کوٹ کرتے ہیں باقاعدہ ٹھیک ہے انفاق فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یا اس کے ٹاپکس میں تو یہ امپورٹنٹ آیت ہے اور یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے آنی بھی چاہیے زبانی بھی آنی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیفینیٹلی اس کی ہونی چاہیے لن ہرگز نہیں تنالو پہنچ سکتے البرا نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو کہ تحبون تمہیں پسند ہے مطلب تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو کہ تمہیں محبوب ہے تمہاری پسندیدہ شے ہے تو سورۃ البقرہ کا جو لاسٹ سیکشن تھا جس میں ہم نے ویلتھ مینجمنٹ پڑھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسٹ ریکمینڈیڈ یوز آف منی کیا ہے ٹو اسپینڈ اٹ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اللہ کے رستے میں پیسہ خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ یوز ہے کیوں کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور جبکہ سود کے ذریعے سے مال لینے سے مال گھٹتا ہے اصل میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے لیکن مال گھٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مال میں کمی آ رہی ہے لیکن اصل میں مال بڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اتنی زیادہ موٹیویشن دی گئی ہے انکریج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مکمل مسلسل خرچ کریں اور خرچ کرتے ہی رہیں متقین کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ لوگ جو کہ جو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب خرچ کیا کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں مزید ایڈیشن ہے یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جب سوال ہم نے دیکھا تھا نا سورۃ البقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا قل العفو مطلب کہ جو بھی زیادہ ہے جو بھی ضرورت سے زیادہ شے ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو ٹھیک ہے اب یہاں پر اسی کی مزید ڈسکرپشن آ رہی ہے مزید ڈیٹیل آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم واقعی نیک بن جاؤ اور تمہیں نیکی کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے آیت بر جب ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں ہی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیک آیت بر بر مطلب نیکی نیکی کی جو ڈیفینیشن تھی جس آیت میں آیت بر میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے 177 آیت جو ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے جو ایلیمنٹس تھے نا نیک ہونے کے باقاعدہ نیکی کی ڈیفینیشن کے جو ایلیمنٹس تھے اس میں سب سے بڑی اور سب سے جو مقدم شے مقدم مینس جو پرائمری جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا جس کو پرائیورٹی دی تھی وہ انسانی ہمدردی ہی تھی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہی اللہ تعالیٰ نے پرائیورٹی دی تھی اور ڈاکٹر اسرار احمد کی جو فیمس سینگ ہے ان کا بہت فیمس ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ مفسر ہے محدث ہے چاہے عالم ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے جو بھی ہے وہ جتنا بھی بڑا انسان ہے جتنے بھی بڑے سٹیٹس پہ پہنچ چکا ہے اگر اس کو دوسرے کے دکھ پہ دکھ نہیں ہوتا نا دوسرے کے کا دکھ محسوس نہیں ہوتا
तो फिर वो नेक नहीं है। दूसरे के दुख को महसूस करके उसके दुख में कमी कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करके उसके दुख को हल्का कर सकता है, लेकिन नहीं करता, तो वो क्या है, वो नेक नहीं है। ये डॉक्टर सार अहमद का बहुत अहम क्लिप है ना, बहुत फेमस क्लिप है। तो कितनी यानी अहम बात है ये, आयत बिर में भी हमें पता चल रही है, यहाँ पर भी पता चल रही है। अल्लाह के रास्ते में खर्च तो करना ही है, लेकिन इंसानी हमदर्दी का तकाजा है क्या, एक दूसरे के दर्द को महसूस करने का तकाजा है क्या, उसमें से खर्च करें जो कि हमें महबूब है। गली सड़ी चीज खर्च नहीं करनी, खराब चीज खर्च नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कपड़े अल्लाह ताला के रास्ते में देने हैं, तो उसमें अब जो सूट फट चुका है या बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है, कपड़ा गल चुका है, वो निकाल के हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे होते हैं। बल्कि अगर हम कोई नई चीज देने लगे ना, कोई गलती से कोई देख ले तो वो कहेगा ये क्यों दे रही हो, ये ठीक तो है अभी। यानी इस तरह की बातें हमारे मुंह से निकल रही होती हैं कि ये देने की क्या जरूरत है, ये तो अभी ठीक है, ये तो अभी तुम खुद भी पहन सकती हो। तो भाई क्या बिगाड़ के देना है, खराब करके देना है, फाड़ के देना है? जब तक फट नहीं जाता तब तक हम देंगे नहीं। तो ये बड़ी कॉमन सोच है जो कि एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। और जो चीजें खराब होने वाली नहीं होती ना, वो तो हम देते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किताबें वगैरह फर्ज कर ले। किताबें अब ऐसी चीजें हैं जो कि अगर कोई खुद से ना फाड़े नहीं फटती हैं। एक दफा हम पढ़ते हैं, दो दफा हम पढ़ते हैं, वैसे ही पड़ी हुई होती हैं। तो हम कभी देते ही नहीं है किसी को, वैसे के वैसे ही डंप पड़ा हुआ होता है। इसी तरह आप समझे, डेकोरेशन हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घरों में होती हैं जो कि बैग्स हो गए, एक्स्ट्रा बैग्स हो गए, हम लोग वो अलमारियों में घुसा घुसा के रखते रहेंगे, अलमारियों में भरते रहेंगे, हम वो देते ही नहीं है। इसी तरह खाने पीने की चीजें हैं, अक्सर लोग खाना भी तब फ्रिज में से निकाल के दूसरे को देते हैं जब वो बिल्कुल या तो खराब हो चुका होता है, एक्सपायर हो चुका होता है, या एक्सपायर होने वाला होता है। जबकि बात यहाँ पर इस आयत में तो इतनी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि सिर्फ ये भी नहीं कहा जा रहा कि जी ठीक होने से पहले पहले दे दो। ठीक है, जैसे खाना है, खाना अब हो सकता है किसी खाने में नमक ज्यादा है, अब ये भी नहीं अल्लाह ताला कह रहे कि ठीक है जी खराब नहीं हुआ लेकिन ठीक है, लेकिन दे दो, नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें पसंद है तो दो, जो तुम्हारी पसंद की चीज है ना वो अल्लाह के रास्ते में दो। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों में से जो आपको पसंद है वो आप अल्लाह के रास्ते में दें। आपके जूते हैं, उसमें से जो आपको पसंद है, जो आप पहनते हैं, आपने देखा है कि किसी को जरूरत है, तो आप अपनी पसंद की चीज अल्लाह के रास्ते में दें। इसी तरह खाना पीना है, खाना पीना जब बिल्कुल ठीक है, अच्छा खाना बना हुआ है, आप खा रहे हैं, तब आप किसी को शामिल करें, तब आप किसी को दें। ठीक है, तो जो अपनी पसंद की चीज होती है उसमें से खर्च करना, क्यों ये नेकी की निशानी है। लेकिन इन्फाक फी सबिलिल्लाह वैसे भी करना, वैसे अल्लाह ताला के रास्ते में देना, ये जैसे मैंने बताया मुत्तकी होने की निशानी है। और इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है ना, इस्लाम की डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं होती अगर हम जक़ात नहीं देते। जक़ात अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ही है ना, इन्फाक फी सबिलिल्लाह की मद में ही आती है जक़ात। लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने अब पहुंचना है नेकी के लेवल पे। तो नेकी का जो लेवल है ना, वो तुम तभी पहुंच अडॉप्ट कर सकोगे, उस तक पहुंच सकोगे, जब तुम उसमें से खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पसंदीदा चीजें देते हुए दिल को दुख लग रहा होता है, दिल को तकलीफ हो रही होती है, मुश्किल लग रहा होता है। दिल के अगेंस्ट जाकर इंसान वो चीज देता है, अपने ख्वाहिश के अगेंस्ट जाकर इंसान देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आपने कोई रिंग पहनी हुई है या कोई भी ऐसी चीज पहनी हुई है, आप बाहर कहीं जाते हैं, ब्रेसलेट पहनी हुई है या और कोई चीज जो नजर आ रही है आपने पहनी हुई है, आप जाते हैं और किसी को पसंद आ जाती है, कोई आपकी कोलीग या आपकी क्लास में कोई तारीफ करता है, तो आप कहते हैं कि ठीक है आप ले लें, आप रख लें, तो वो आप दे देते हैं। और ये भी अल्लाह के रास्ते में ही देना होता है, सदका जरूरी नहीं है। लेकिन सदका प्राइमरीली उसी को दिया जाता है जो कि मिस्कीन है, गरीब है, फकीर है, ठीक है, जरूरतमंद है, यतीम है, प्राइमरीली उसी को दिया जाता है। लेकिन आपको पता है मुस्कुराना भी सदका है, तोहफा देना भी सदका है, हर नेकी सदका है। तो अगर आप किसी को तोहफा वगैरह भी दे देते हैं तो वो भी
सदका ही है और उसी में काउंट होते हैं, वो भी आप अल्लाह की खातिर दे रहे हैं। अल्लाह की खातिर आप अपने किसी दोस्त को भी कुछ दे रहे हैं तो वो भी नेकी में ही काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी मोहब्बत आपस में बढ़ेगी और आपका जो रिश्ता है वो प्रिजर्व होगा। सही, तो ये नेकी की डेफिनेशन का ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेकी की डेफिनेशन हमने सूरह बकरा में पढ़ ली थी, उसमें ये एडिशन होगी जो कि हमने आज पढ़ ली। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज नहीं तुम पहुंच सकते नेकी को यहाँ तक कि तुम उसमें से खर्च करो जो कि तुम्हें महबूब है। तो आज थोड़ा सा जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि कितनी चीजें जो हमें महबूब हैं और हमने अलमारियों में घुसाई हुई हैं, हालांकि हम यूज नहीं करते, उन्हें पहन नहीं रहे, लेकिन सिर्फ मुझे पसंद बहुत है, मेरी फेवरेट है, बस इस वजह से रखी हुई है। या ये मेमोरी है, ये याददाश्त है, इसके साथ मेरी बड़ी यादें यादें वाबस्ता है, उस वजह से रखी हुई है। हम ये वाली सोच रखते हैं ना, इसीलिए हमारे घर भरे हुए होते हैं हमारे घर चीजों से। जबकि जो लाइफस्टाइल हमारे सलफ का था, असलाफ का था, उनके घर एक एक कमरा, एक अलमारी नहीं होती थी उनके घरों में, कि जिसके अंदर बेसिकली वो चीजें ठोंस कर छुपा के रख सकें, बंद करके रख सके, प्रिजर्व करके, सेव करके, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रख सके। चीजें इस पर्पज के लिए बनी ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आपको पता है कि ये कोई चीज फ्यूचर में यूज हो सकती है, जैसे सर्दियों में आपको पता है कि ये चीज यूज होगी, तो आप पिछली वाली सर्दियों में उसको पैक करके अलमारी में ही रखेंगे ताकि अगली सर्दियों में आपको दोबारा खर्च करके वो चीज नई ना लेनी पड़े। तो ये एलिमेंट्स डेफिनेटली अपने अपने पॉकेट के एतबार से और अपने खर्चों के एतबार से ये भी देखा जाएगा कि किस चीज का कितना यूज है और उसको आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हमने अपनी ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और आपने जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे ही हुए हैं घरों के, जो कि असलाफ के घर होते थे, सलफ सालिहीन के घर होते थे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के घर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक थे। तो उनमें सिंपल स्ट्रक्चर्स ही थे, कोई अलमारियां नहीं, कोई दराज नहीं, जिनको खोलें तो चीजें उबल उबल कर बाहर आ रही हैं। सही है, तो ये जमा करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अल्लज़ी जमा जमा मालन व अद्ददा, ये जहन्नुमियों का की खूबी ये बताई गई है ना कि वो माल जमा करते रहते हैं और उसको गिन गिन के रखते हैं, और माल में सारा कुछ आ जाता है, सिर्फ पैसा सोना चांदी नहीं आता बल्कि हर तरह की चीज आ जाती है। तो छोटी जगहों पे भी हम रह सकते हैं और आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं, अगर हम अपने लिए स्पेस बनाएं और चीजें जमा कर करके चीजें ही ना रखते जाएं। बल्कि ये रूल बना लें कि जब भी आपने कोई चीज खरीदनी है ना, जैसे कोई कपड़ा खरीदा है, तो आप कोई ना कोई कपड़ा उसके बदले में निकालें, या दो निकालें, एक खरीदा है तो दो निकालें, एक जूता खरीदा है तो एक जूता निकालें, और वो भी अच्छी हालत में, पसंद का, या फिर दो निकालें, जो भी आपने अपने लिए रूल बनाना है, लेकिन रूल बनाएं। एक नई किताब दोबारा से खरीदी है तो कोई ना कोई किताब किसी को दे दें, तोहफतन दे दें। और इसी तरह बाकी चीजें हैं, बाकी भी आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, जो भी हैं, कोई कोई भी नई चीज आप लोग खरीदते हैं तो पुरानी चीजों में से कुछ ना कुछ सदका जरूर किया करें। ठीक है, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कोई भी चीज, यानी और कोई भी चीज हो चाहे उसमें से, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, अल्लाह उससे बाखबर है। मतलब नेकी ये है कि जिस चीज से मोहब्बत है ना वो खर्च करो, लेकिन अगर तुम जो भी खर्च करते हो ना, जाहिर सी बात है वो खराब नहीं होना चाहिए, यूजेबल सिचुएशन में होना चाहिए। और बाकी भी जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह को जाया करने वाली तीन कंडीशन थी, वो आपको याद है ना, कि एहसान करके जता कर नहीं देना, अजियत पहुंचा कर नहीं देना, और रियाकारी से नहीं देना। ये तीन चीजें क्या होती हैं, सदके को जाया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को, उसके सवाब को जाया कर देने वाली होती हैं, या बहुत ज्यादा घटा देने वाली होती हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स ना हो उसके बगैर जो भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते में फिर खर्च करोगे, तो अल्लाह ताला को, अल्लाह उससे बाखबर है, अल्लाह उससे जानता है कि किस नीयत से दिए, या कितनी मोहब्बत थी उस चीज से, या क्यों दिए वो चीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुल्लु तआमी, तमाम खाने की चीजें, काना थी,
हिल्लन हलाल लिबनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, इल्ला मगर माँ जो के हर्रमा हराम कर लिया था, इसराइल इसराइल ने। ठीक है, इसराइल अलैहिस्सलाम कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा लक़ब, दूसरा नाम है इसराइल अलैहिस्सलाम। तो अला नफ्से ही, अपने ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अपने ऊपर हराम कर लिया था ना, उसके तमाम खाने की चीजें जो थी ना वो हलाल थी बनी इसराइल के लिए, मगर वो जो याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपने ऊपर हराम कर लिया, मिन कबल, इससे पहले, अन ये के तुनज़्ज़ला, नाजिल की गई, तौरात, तौरात। कुल कह दीजिए, फतू, तो ले आओ, बितौराती, तौरात को, फतलूहा, तो उसको पढ़ो, उसकी तिलावत करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो क्या स्टोरी है इस आयत की? ये बात हो रही है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनको बेसिकली ऊंट का जो गोश्त था ना वो उनको पसंद नहीं था, या तो उनको तबीयत में शायद कराहत महसूस होती थी, या कोई बीमारी की वजह से, डायरेक्ट रीजन नहीं पता, किताबों में मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ऊंट का गोश्त था ना उसको अपने ऊपर ममनू करार दे दिया था, उसको खाना छोड़ दिया था, खाते नहीं थे, शायद कोई बीमारी की वजह से या पसंद नहीं था इस वजह से, लेकिन ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। अब वो नबी थे अपने कौम के, ठीक है। तो जो अपनी कौम के प्रॉफिट होते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी होते हैं, वो अगर किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो फौरन बात आम हो जाती है, रवाज बन जाता है, और सारे लोग भी देखा देखी उसको छोड़ने लग जाते हैं कि शायद अल्लाह को पसंद नहीं है इसलिए ये हमने नहीं खाना, या शायद हराम है तो इसलिए हमने नहीं खाना। तो इतना ज्यादा उस पे जरूर वो लोग रिसर्च कर भी नहीं करते कभी, और बस उसको छोड़ देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सारा कुछ हलाल ही रखा हुआ था, सिवाय उसके जो कि इन्होंने खुद ही हराम कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तो किसी वजह से खाना छोड़ा ऊंट का गोश्त, लेकिन बाकी बनी इसराइल ने खुद ही हजरत याकूब को देखा देखी खुद ही खाना छोड़ दिया। इससे पहले कि तौरात नाजिल हो, तौरात तो बाद में आई थी ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, तो तौरात आने से पहले का डेफिनेटली ये वाकया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाला। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तौरात भी लेकर आओ और उसमें पढ़ो, मुझे बताओ तौरात में ये कहाँ लिखा है। तौरात में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुम लोग ऊंट का गोश्त नहीं खा सकते। तो अगर तुम वाकई सच्चे हो कि ऊंट का गोश्त खाना हराम है, तो किताब में, तुम्हारी किताब में जहाँ लिखा हुआ है वो तुम बताओ, और ताकि दलील हो और पता चले कि क्यों ये छोड़ा हुआ है। मतलब जो हराम और हलाल है ना, वो वैसे ही इंसान खुद से नहीं डिसाइड कर सकता। खुद से एक पूरी की पूरी कौम अपनी जो जाती पसंद नापसंद होती है ना, उसकी वजह से कुछ छोड़ देना, ना खाना, वो एक अलग चीज है। लेकिन पूरी की पूरी कौम जब एक ही बात को फॉलो करने लग जाती है तो वो रूल बन जाता है, और इन्होंने यही किया है, फॉलो करना शुरू किया तो उसको रूल ही बना दिया, उसको हराम ही कहने लग गए। तो हराम हलाल का जो फैसला है ना, ये अल्लाह ताला असल में कह रहे हैं कि ये किसके हाथ में? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। क्या हलाल करना है, क्या हराम करना है, क्या मना है, क्या जायज है नाजायज है, इसका फैसला कोई भी इंसान खुद से नहीं कर सकता। और जब तुम लोगों ने खुद खुद से अपने ऊपर गोश्त को हराम किया हुआ है, तो और तुम लोग समझते असल में ये हो कि ये दीन का पार्ट है, तुम्हारे दीन का पार्ट है, तो तौरात में जहाँ लिखा हुआ है वो तुम निकालो और वो तुम लोग दिखाओ। फमन इफ्तरा, फिर जो कोई घड़ ले, इफ्तरा घड़ना, खुद से बनाना, अल्लाह अल्लाह पर, अल कज़िब झूठ, मिन बादी जालिक इसके बाद, यानी सच पता चलने के बाद भी जो फिर भी झूठ घड़ता रहेगा। मतलब हराम हलाल के जब फैसले इंसान खुद करने लगता है ना, तो वो असल में झूठ गढ़ लेता है, अल्लाह के ऊपर झूठ बोल देता है। जब कोई कहता है ना कि ये हराम है, तो वो असल में तो अल्लाह के बिहाफ पे बोल रहे हैं ना कि ये हराम है, अब चाहे उसके पास उसकी कोई दलील हो या ना हो। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जाती तौर पे पसंद नहीं था, वो तो दुनिया से चले गए। उसके बाद यहूदियों ने क्या किया, उसके बाद बनी इसराइल इस बात को कंटिन्यू रखा उन्होंने, और अल्टीमेटली उनमें ये बात ऐसे फेमस हो गई कि उन्होंने उसको हराम ही बना दिया, और ऐसे बना दिया जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, जैसे तौरात में हुक्म आया हुआ है।
समझ आ रही है ना हुआ क्या है असल में। तो ये हराम हलाल के खुद से फैसले करने लग जाना, ये असल में अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, उसको अपने हाथ में लेना है, अल्लाह पर नाउजुबिल्ला झूठ बांधना है। तो जो भाई ये ऐसा करेगा इसके बाद, मतलब हक पता चलने के बाद, फउलाइका हुमुज जालिमून, तो यही लोग हैं वो जो के जालिम हैं, यानी जालिम मतलब सिनर्स हैं, गुनाहगार हैं ये लोग। कुल कह दीजिए सदकल्लाहु, सच फरमाया अल्लाह ने। फत्तबिऊ, तो पैरवी करो, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, हनीफन, जो के हनीफ था, बिल्कुल यकसू था, सीधा था, सीधा चलने वाला, सबसे बेताल्लुक होकर सिर्फ और सिर्फ सीधे रास्ते पे चलने वाला। इधर जो टेढ़े मेढ़े रास्ते जा रहे हैं ना, थोड़े बहुत भी उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते थे, सिर्फ अल्लाह के होकर, अल्लाह वाले बनकर, रब वाले बनकर ही चलते थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से भी नहीं थे। मतलब कि जो मुशरिकीन कहते हैं ना कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे हैं, हजरत इब्राहिम हमारे नबी थे, हम उनके मुताबिक, तो हम जो करते हैं ना वो उनके मुताबिक है, उनके दीन के मुताबिक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, ना मुशरिकीन वाला जो दीन है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, और ना ही जो यहूदो नसारा करते हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। ये तीनों ही जो बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो तरीका था वो क्या था, हनीफन, बिल्कुल यकसू होकर चलना, सीधा, दीन हनीफ पर चलना, दीन इस्लाम पर चलना, ठीक है। और तो फॉलो किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो किया जाएगा। और शरीयत, आपको पता है शरीयत मोहम्मदी को फॉलो करना हमारे ऊपर फर्ज है, हम उसी शरीयत को फॉलो करेंगे। बल्कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे दुनिया में, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आ जाएंगे फ्यूचर में, तो वो भी शरीयत मोहम्मदी को ही फॉलो करेंगे, जो आखिरी शरीयत है और आखिरी किताब है कुरान मजीद, उसी को ही फॉलो करेंगे, उसी की टीचिंग्स को दुनिया में नाफिज करेंगे। तो कुल सदकल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया। मतलब जो अल्लाह ने हराम हलाल के फैसले किए ना, असल में वही सच है। और जो भी अहकामात अल्लाह के हैं ना, अल्लाह ने खुद दिए हैं, जो तुम्हें तौरात में मिल रहे हैं, इंजील में मिल रहे हैं, पुराने जमानों में जो सही तौरात और इंजील थी उसमें, और बाकी जो वही से जो पता चल रहा है वही सच है, वही है सिर्फ अल्लाह की तरफ से। जो तुमने खुद से बातें बनाई हुई हैं वो अल्लाह की तरफ से सच नहीं है। और पैरवी किसकी करो, फॉलो किसको करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बात मानते थे और हर हुक्म पे कहते थे अस्लम, तो मैंने सर झुका लिया, मैंने फौरन मान लिया, तो उस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका अपनाओ। इन्ना, बेशक, अव्वल बैतिन, पहला घर, वुदिआ, वुदिआ, जो मुकर्रर किया गया था, वज़ा किया गया था, लिन्नासी, लोगों के लिए, यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया था, लल्लजी, वही है जो कि बेबक्का, मक्का में है। मक्का को बक्का भी कहते हैं, ठीक है, बक्का भी मक्का का पुराना नाम था। बक्का और मक्का दर हकीकत असल में ना एक ही लफ्ज के लिए दो तलफ्फुज हैं। तो मक्का, बक्का एक ही बात है, सही। बेसिकली मीम और बा के जो मखरज है वो दोनों होंठों से है ना, वो दोनों पास पास होते हैं। तो म, ब, इस तरह आपस में रिप्लेस हो जाते हैं अरेबिक में। तो एक ही वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशंस हैं ये। तो अब पहला घर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोगों के लिए बनाया गया, किस पर्पस के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, वो वही है जो मक्का में। तो यहाँ पर हमें ये बात पक्की पता चल गई कि पहला घर जो है वो बैतुल्लाह ही बना था, पहली मस्जिद जो जमीन पर बनी है वो बैतुल्लाह ही बनी है। और स्कॉलर्स के मुताबिक सबसे पहले बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को किसने बनाया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद बनाई है जमीन पर, और वो बैतुल्लाह है, अल्लाह के घर मक्का में, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे नौए इंसानी चलती रही है आगे, तो दीवारें जैसे पुराने जमानों में कच्ची बनती थी तो दीवारें ढह जाती थी, गिर जाती थी, फिर किसी ने तामीर होगी की होगी, फिर गिर जाती थी। इस तरह इतनी पुरानी हिस्ट्री तो हमें नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली यही सिस्टम चलता जाता होगा।
अनलेस एंड अनटिल जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए हैं, तो उसकी स्टोरी हमें सूरतुल बकरा में मिलती है कि जब अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि बैतुल्लाह को तामीर करो उसकी बुनियादों से। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैतुल्लाह को तामीर करो उसकी बुनियादों से। मतलब ये कि उसकी बुनियादें ऑलरेडी मौजूद थी। बुनियादें ऑलरेडी जमीन के अंदर जो रखी जाती है ना, फाउंडेशन, वो रखी जा चुकी थी। और पहले से बैतुल्लाह मौजूद था, लेकिन सैलाब की वजह से या जलजलों की वजह से या आंधियों की वजह से दीवारें गिर जाती होंगी। तो वहां पर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में थे तो अलबत्ता बैतुल्ला मौजूद नहीं था। काबा का जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, वो मौजूद नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि इसकी बुनियादों से ही दोबारा खड़ा करो, दोबारा बनाओ। अच्छा, उसके बाद भी बहुत दफा ऐसा हुआ है कि सैलाब वगैरह आया है तो कोई ना कोई दीवार काबा की गिरी है, क्योंकि दीवारें कच्ची होती थी। तो दोबारा से उनको बनाया जाता था। और आपको याद ही है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब आप वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, तो हमारी इस्लामियत की बुक्स में वो वाकया है ना कि जब सैलाब आता है, दीवारें गिर जाती हैं, तो सारे कुरैश वाले पैसे वगैरह जमा करते हैं और हर कोई एक एक दीवार ले लेता है कि मैं ये दीवार, हम ये कबीला ये दीवार बनाएगा, वो कबीला वो दीवार बनाएगा। इस तरह चार कबीले चार दीवारें डिवाइड कर लेते हैं और चारों दीवारें छत खड़ी कर देते हैं। फिर हजरे अस्वद रह जाता है जो जन्नत का पत्थर है, ठीक है। हजर पत्थर, अस्वद मीन्स काला, जो जन्नत का काला पत्थर है वो रह जाता है सिर्फ। वो पत्थर जन्नत से आया था ना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो वो रह जाता है। तो उसके लिए फिर आप उनकी बहस होने लग जाती है कुरैश की कि अब ये कौन फिक्स करेगा, जो ये रखेगा इसकी जगह पे, ये कोने में फिक्स करेगा। वो उसके लिए तो बड़े एजाज की बात है। तो सारे लड़ने लग जाते हैं, हम करेंगे हम करेंगे। तो अल्टीमेटली वो फैसला करते हैं कि जो भी इस दरवाजे से सामने से पहले एंटर होगा, बस वो फैसला करेगा। तो वो बैठ जाते हैं कि अब देखते हैं हम सामने से कौन पहले एंटर होता है। तो थोड़ी देर के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से एंटर होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु को फिर वो लोग कहते हैं कि जी आप फैसला करें कौन सा कबीला करे। और हर कबीले को यही लग रहा होता है कि आप सल्लल्लाहु उसके हक में ही फैसला करेंगे। और ये हमें पता है ना कि आप सल्लल्लाहु कि जिससे भी बातचीत होती थी, ताल्लुकात होते थे, मुलाकात होती थी, तो हर एक को यही लगता था कि सबसे ज्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु को उसी से है, क्योंकि आप सल्लम के जो मामलात हैं और इखलाक है वो उन लोग हर एक के साथ इतने अच्छे थे। हर एक के साथ इतने बेहतरीन होते थे कि हर एक को यही लगता था कि वही आप सल्लम का फेवरेट है और उसी से आप सल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत है। फिर आप सल्लम ने वो चादर मंगवाई और उसके दरमियान में रखवाया। चादर के चारों कोने चारों कबीले वालों को पकड़ा दिए पास ले जाके। फिर आप सल्लम ने खुद उठाकर फिक्स किया। ये वाकया यकीनन आप लोगों को याद होगा। तो ये काबा की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने टच की है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है पहला घर जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया वो बैतुल्लाह ही है। बैतुल्लाह, फिर इसका मतलब है कि शुरू से बैतुल्लाह ही की तरफ किबला भी वही था, उसी की तरफ नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फिर मस्जिद अक्सा जब बन गई, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे हजरत इसहाक, उनके साथ। तो मस्जिद अक्सा जब बन गई तो वो किबला बन गया बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ताला ने उसको किबला चूज किया, ठीक है। तो वो इसीलिए फिर बनी इसराइल मस्जिद अक्सा जो है उसी को फिर बनी इसराइल के जितने नबी आए और जो भी उनकी सारी जनरेशन्स चली, उनके लिए किबला अव्वल कौन सा था? मस्जिद अक्सा ही था। तो इसीलिए मुसलमान भी जब आप सल्लम जब आखिरी रसूल बने और आप सल्लम को नबूवत और रिसालत का तोहफा दिया गया, तो आप सल्लम के लिए भी किबला अव्वल कौन सा था? बैतुल मस्जिद ही, बैतुल मक़दिस ही था। मस्जिद अक्सा ही पहला किबला था मुसलमानों के लिए। आप सल्लम के जमाने में भी किबला अव्वल वही था। और अल्टीमेटली किबले की तब्दीली होती है मदीना जाने के बाद, दूसरी हिजरी में। मदीना जाकर दूसरी हिजरी में फिर अल्लाह ताला किबला तब्दील कर देते हैं और बैतुल्लाह को कर देते हैं। अलबत्ता पहला घर जो बना है वो बैतुल्लाह ही है। वो जो कि बिबक्का था मुबारकन, मक्का में है, मुबारकन बरकत वाला है। यानी वहां पर बरकतें ही बरकत है। बरकत क्या होती है? खैर में ज्यादती हो जाना, नेकी का बढ़ जाना, ये बरकत होती है।
तो वो ऐसी जगह है, बैतुल्लाह ऐसी जगह है जो बरकत वाली जगह है। ठीक है, मुकद्दस जगह है, बरकत वाली जगह है, हरम है, हुर्मत वाली जगह है। वहां पर खैर ही खैर है। एक नमाज पढ़ने का आपको पता है 1 लाख नेकी के बराबर, सॉरी 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब है। तो खैर बढ़ गई ना, बरकत वाली जगह है, हर चीज में खैर बढ़ जाएगी। जो भी काम आप वहां पर करेंगे वो नेकियां, नेकियों का रिवॉर्ड ज्यादा होगा। सही है, और जो भी आप बेसिकली उसका बेनिफिट ज्यादा होगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जो भी अच्छा काम नेकिया वहां पे करेंगे उसका बेनिफिट ज्यादा ही होगा, उसमें से खैर ज्यादा ही निकलेगी। जैसे आप खाना लेते हैं वहां पर, तो वो खाना बरकत वाला होगा, यानी उस खाने में, खाने से ज्यादा लोगों की भूख खत्म हो जाएगी, ज्यादा लोगों को फायदा होगा, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, खैर ही खैर होगी। मुबारकन है, बरकत वाली जगह है वो। वहुदन और हिदायत है लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। हिदायत है मतलब कि हिदायत का मरकज है, हिदायत वाली जगह है वो। हिदायत का जो रास्ता है उसको फॉलो करने के लिए लोग नमाज के लिए, तवाफ के लिए, इतिकाफ के लिए कहाँ पर आते हैं? बैतुल्लाह में आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।